Hello everyone, wishing you all a warm good morning. This is MD Danish Malink. Today, once again, I welcome you all, sitting all gathered here to attend the training session program. The resource person of today is Mr. Satyam Kumar, and the topic over we are going to discuss today is counseling approaches. Among all of you, I would like to request Mr. Satyam Kumar sir to please conduct this training session. Sir, please. Thank you, Danish sir. Good morning, everyone. I am Satyam Kumar, and I am going to take the today's training session, and the topic is and the topic is counseling approaches. First of all, before I start, we have to know what is counseling approaches, which means paramars, and why we need a counseling. Because in this modern era, many of the people need counseling because they all are feeling stressed due to their heavy activities or other things. Overview of introduction. Need of counseling. Why we need to counseling is need everyone because of their stress, to release their stress, to express their view to their experienced person. Need of a framework. Main approaches used by professional counselor, विच मीन्स कि हम अपनी बातें अपने काउंसलर को बता सकते हैं. काउंसलिंग इज नॉट जस्ट अ डिस्कशन, इट्स अ डिस्कशन बिटवीन अ प्रोफेशनल पर्सन and the normal person, and the professional person helps to maintain their life. Cognitive, psychodramatic, humanistic and behavioral approaches. There are many more approaches. Introduction. Counseling is to assist individual in learning about themselves. Counseling about environment around them. यानी कि किसी भी पर्सन के सामने हमें अपनी बातें को व्यक्त रखने की इच्छा जाहिर होती है. रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल टू इन्वायरमेंट. कॉन्शियस एफर्ट टू हेल्प इन लर्निंग अबाउट रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, not always remedial. Understanding the behavior of a pattern. हमें एक पर्सन जिसे काउंसलिंग की जरूरत है उसके बिहेवियर को स्टडी करना होता है, उसके बारे में जानना पड़ता है, उसके पैटर्न को जानना पड़ता है. अनडिजायरेबल पैटर्न एंड चेंज इन बिहेवियर. उस अनडिजायरेबल पैटर्न को हमें स्टडी करके उस पर्सन के बिहेवियर को चेंज करना चाहिए. इमोशनल एंड इंटरसेप्शनल एडजस्टमेंट. मेनी ऑफ देम, हमें उसके साथ क्या थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट रखना चाहिए. थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट रखने से क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है अपनी बातें को व्यक्त करने में. नीड ऑफ गाइडेंस एंड लर्निंग. नीड फॉर प्रोफेशनल एडजस्टमेंट. प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट इज यूनिवर्सल. किसी भी प्रॉब्लम का एडजस्ट करना ये ह्यूमंस का यूनिवर्सल लॉ है, एंड हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं. व्हाट इज एडजस्टमेंट? इन बायोलॉजी, एडेप्टेशन. इन साइकोलॉजी, हाउ एन इंडिविजुअल मैनेज लिविंग बाय हिज हर विजडम. यंग एंड अडल्ट डिटर्मिनेशन ऑफ psychological and social identities. Adjustment means in biology adaptation. And what is adaptation? So adaptation is to adapt the environment. Adapt the environment or adapt whatever we have is called adjustment. If we need a home but
the home in which we live in, there are high temperature and we need to adjust in high temperature, because if we not adjust in high temperature, we are die. So we need to adjust in the high temperature. This is called adaptation in biology. In psychology, how an individual manage living by his or her wisdom. अपने इच्छा के लिए कोई कैसे किस तरह से एडजस्ट करता है. There is a common examples of human, और in India हर वाइफ चाहती है कि वो जिस किसी घर में जाए अच्छे से रहे, हर खुशी मिले, बट देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स. अगर हस्बैंड का सैलरी थोड़ा कम है तो उसे एडजस्ट करना पड़ जाता है, उसे खाना में एडजस्ट करना पड़ जाता है, उसे कपड़े पहनने के लिए थोड़ा सा रेट का एडजस्टमेंट करना पड़ जाता है. सौंदर्य, हर फीमेल का गहना, सौंदर्य फीमेल को गहना से कनेक्ट किया गया है. तो अगर थोड़ा सा पैसे की कमी है तो उस गहने से एडजस्ट करना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट इन फैमिलीज. यंग एंड अडल्ट डिटर्मिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल आइडेंटिटीज. नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन. इज फ्रस्ट्रेशन prevent a plan or action from progressing, succeeding or being fulfilled. prevent यानी कि किसी भी एक्शन और प्लान को प्रोग्रेस करना, उसे और आगे बढ़ावा देना, और बीइंग फुलफिल्ड, उसको फुलफिल करना. प्रिवेंट समवन फॉर डूइंग अचीविंग समथिंग. अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं. सेकेंड, काउज समथिंग टू फील डिसइंफेक्टेड और अनफुलफिल्ड इंफीरियरिटी. नीड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग. काउंसलिंग का जरूरत क्यों पड़ता है हमें, या गाइडेंस का जरूरत क्यों पड़ता है? तो एक कॉमन सा एग्जांपल से समझाते हैं. जैसे किसी भी स्टूडेंट को काउंसलिंग का जरूरत क्यों पड़ता है, या फिर हम सब कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं एंड हम लोग मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड देन हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है. मेंटली डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे पीठ पे लाद दिया जाता है, कि मतलब उम्र से पहले हमें कोई भी चीज देने का प्रयास किया जाता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस होने की वजह से हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है. एंड ये सिर्फ स्कूल कॉलेज में ही नहीं, घर में भी होते हैं, बहुत सारी कंपनीज में. पर्सनल एडजस्टमेंट इन क्रूशियल सिचुएशन. एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स आर इन डेवलपमेंटल स्टेज, दैट इज फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड personality. Need of a reference, critical friend. High school level students need physics, relationship skills, behavioral aspects and values. जैसे जैसे स्टूडेंट्स हाई स्कूल्स में जाते जाते हैं, उन्हें अपने फिजिक, इन सब पे ध्यान जाता है. रिलेशनशिप, स्किल्स, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज, उन्हें ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होती है. एट ड्रॉप आउट सिचुएशन ऑफ स्कॉलरिंग पीरियड. कॉन्ट. एट कॉलेज लेवल adult learners need support in problems like crime, offense and drugs. देखिए कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज लाइफ में जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, हर चीज का, किसी ना किसी चीज का एडिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है बच्चे में, चाहे वो क्राइम हो, किसी चीज का ऑफेंस हो एंड या फिर ड्रग एडिक्ट हो. तो इन सबको हमें रोकने की जरूरत है, इसलिए हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है और हमें टाइम टू टाइम काउंसलर करते रहना चाहिए, काउंसलिंग करते रहना चाहिए.
task. How is teaching different from counseling? टीचिंग काउंसलिंग से डिफरेंट कैसे है? अप्रोचेस टू काउंसलिंग, काउंसलिंग को कैसे अप्रोच किया जाए? तो नीड ऑफ अ थ्योरी, अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ empirical data derived from observation and or experimentation and of their interception. Counseling is based on a theory. A theory becomes an approach when it is practiced for a problem solving from many approaches we will discuss. Counseling is just an experiment. हम जितना ज्यादा काउंसलिंग करेंगे हम उतना ज्यादा सीखते जाएंगे, हम उतना ज्यादा किसी पर्सन के ब्रेन को पढ़ते जाएंगे, हम उस पर्सन के बारे में जानते जाएंगे। और अगर सेम उसी टाइप का कोई पर्सन हमारे सामने काउंसलिंग के लिए आता है तो हमें इजी होगा उस सामने वाले पर्सन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बिकॉज लोग काउंसलिंग के लिए आते क्यों हैं? ताकि वो फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं एंड उन्हीं डिस्टर्बेंस को हमें ठीक करने की जरूरत होती है। तो अप्रोचेस टू काउंसलिंग, हमें काउंसलिंग अप्रोच कैसे करना है? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच विच मीन्स हम बोल सकते हैं कि अगर कोई हमारे सामने काउंसलिंग के लिए आया तो हमें उससे ह्यूमैनिटी टाइप का बिहेवियर करना है, ना ही उसे डांटना है, ना ही उस पर जोर झटका चिल्लाना है। मतलब एज अ पोलाइट बिहेवियर के साथ हमें सामने वाले पर्सन को अप्रोच करना है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। पर्सन कंसर्न, सामने वाले पर्सन को हमें केयरफुली सुनने की जरूरत है। कॉग्निटिव अप्रोच, बिहेवियरलिस्ट अप्रोच, यानी कि सामने वाले के बिहेवियर को पढ़ करके उस पर अप्रोच करना है। इलेक्टिक अप्रोच, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ अब्राहम एच मैलो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्सटर्नल नीड्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड, साइकोलॉजिकल नीड। Humanistic approach believe in self-preserving, personal growth, creativity and self-sufficiency। यानी कि जब हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच करेंगे तो सामने वाले पे बिलीव करना है, सेल्फ परफेक्टिंग, अपने आप को हमें परफेक्ट बनाने की जरूरत है। पर्सनल ग्रोथ, खुद का ग्रोथ अपने ग्रोथ को मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्रिएटिविटी एंड सेल्फ सफिशियंसी, थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी हमें करने की जरूरत पड़ती है। द काउंसलर, फ्रीडम डिटर्मिनेशन, रेशनलिटी इरेशनलिटी, हॉलिज्म, इलेमेटिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनम, इन्वायरमेंटलिज्म, चेंजेबिलिटी अनचेंजेबिलिटी, प्रोटेक्टिव रिएक्टिव, होम्योस्टैसिस हेरियोस्टैसिस, नोएबिलिटी अनन्योएबिलिटी। फ्रीडम डिटर्मिनेशन, यानी कि हमें सामने वाले को डिटरमाइन करने के लिए, कुछ भी चीज चूज करने के लिए फ्रीडम देने की जरूरत है। रेशनलिटी इरेशनलिटी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, पर्सन कंसर्ड बाय कार्ल रॉगस, साइलेंट कंसर्ड, अ थ्योरी ऑफ थेरेपी। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था साइलेंट, हमें किसी को भी
काउंसलिंग के लिए अप्रोच करने से पहले साइलेंट पोलाइटली बिहेव करना होगा। पीपल आर पॉजिटिवली मोटिवेटेड, हमें पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहने की जरूरत है। सिर्फ हमें ही नहीं, लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहने की जरूरत होती है। इंडिविजुअल्स आर रेशनलाइज्ड, इन रीजनेबल सिचुएशन इंडिविजुअल कैन गाइड। कुछ ऐसे जगह पे रीजनेबल सिचुएशन में जहां पे सामने वाले की जरूरत है, तो वहां पे हमें किसी को गाइड करने की भी जरूरत है। कंट्रोल एंड रेगुलेट हिम हर सेल्फ, उसे कंट्रोल करने की भी जरूरत है। अगर सामने वाला बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो उसको रोकने का कोशिश करना है, रेगुलेट करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको समझाना है। 3 बेसिक कंस्टिट्यूएंट, 3 बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का 3 बेसिक कंस्टिट्यूएंट, द ऑर्गेनिज्म, द फेनोमेनल फील्ड, द सेल्फ। पीपल आर फुली फंक्शनिंग पर्सन इन प्रोसेस, reinstitute the process towards self actualization। कुछ बेसिक कंस्टिट्यूएंट है, जैसे जो द ऑर्गेनिज्म, कंडीशंस फॉर काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल कांटेक्ट। हमें किसी ऐसे बंदे जिसको काउंसलिंग की जरूरत है उसके साथ साइकोलॉजिकल कांटेक्ट बिहेवियरल बनाने की जरूरत है। हमें उसके माइंड को रीड करना होगा। मिनिमम स्टेट ऑफ एंजाइटी, जितना हो सके उसके एंजाइटी को दूर करना का कोशिश करना होगा। काउंसलर जेन्युइननेस, ऐसा नहीं कि कोई नया पर्सन आया और फ्रॉड वाला पर्सन, हमें कोई जेन्युइन पर्सन के पास काउंसलिंग करने की जरूरत है। अनडायरेक्शनाइड पॉजिटिव रिगार्ड, emphatic understanding, silent precipitation। Humanistic, humanistics school or tough, the counselor as facilitator, embalming the silent client to make decisions, the child centered as existential approaches to counseling together with the conditions for counseling, psychological contact, minimum state of anxiety, counselor genuineness, undirectional positive regard, emphatic understanding, client precipitation। Humanist school or tough, the counselor as facilitator, embalming the client to make decisions, which means हमें क्लाइंट को उत्साहित करना होगा ताकि वो अपने डिसीजंस को ले सके। द चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्जिस्टनल अप्रोचेज टू काउंसलिंग टुगेदर विद द pastoral and African counseling approaches, incorporates religious beliefs and insights in their practice। Existential model, borrowed heavily from the existentialist philosophers. The existential approach is one which more than any other stresses the individual capacity for freedom and choice, search for meaning is at the core of existence। Inability to find this meaning is the source of people problems। The role of a counselor to assist the client to find meaning in their life, reduce the anxiety। काउंसलर का रोल है सामने वाले को असिस्ट करना, उत्साह करना, बढ़ावा देना, ताकि वो अपने लाइफ के गोल को, लाइफ के मीनिंग को समझ पाए और जो स्ट्रेस है,
या जिस वजह से स्ट्रेस है उस के लिए उसको स्ट्रेस को वो रिड्यूस कर सके। एग्जिशनल मॉडल, इंडिविजुअल हु लैक मीनिंग, यानी कि द पर्सन हु हैव नो गोल इन देयर लाइफ इज नथिंग, characterized by such behavioral tendencies and hopelessness, personal neglect, disorderness, untidiness, and felt lack of inactiveness and focus। ऐसे पर्सन जिसका लाइफ में कोई गोल नहीं होता है, वैसे लोग अनकंडीशनल फोकस, इनएक्टिवनेस, किसी भी चीज में उनका कोई एक्टिव नहीं होता है, फोकस नहीं होता है, डिसऑर्डरनेस, नेगलेक्ट, हर चीज को वो नेगलेक्ट करने की ट्राई करते हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, बिकॉज इन देयर लाइफ देयर गोल इज नथिंग। गेट आउट ऑफ दिस नेगेटिव एंड लाइफ थ्रेटिंग बिहेवियरल, इन ऐसे नेगेटिव लाइफ से या ऐसे इन्वायरमेंट से जहां के लोगों में कुछ करने की शक्ति ना हो, कुछ करने का जज्बा ना हो, या वो लोग सोचते नहीं हो, उनके लाइफ में कोई गोल नहीं हो, ऐसे इन्वायरमेंट से हमें गेट आउट हो जाना चाहिए, हमें बाहर आ जाना चाहिए। टू एडजस्ट इफेक्टिवली टू द डिमांड्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, पीपल बिकम व्हाट दे आर थ्रू देयर थॉट्स एंड परसेप्शंस। कोई भी पर्सन वो बनता है जो उसका थॉट होता है, उसका परसेप्शंस होता है। वंस गांधी जी सेड, इफ यू वांट टू चेंज, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सबसे पहले आप वो बनने की कोशिश करो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। तो कोई भी पर्सन वैसा बनता है जिसका जैसा उसका थॉट है, जैसा वो सोचता है, जैसा वो रेगुलर बेसिस पे करता है। इंडिविजुअल हैज यूनिक एक्सपीरियंस एंड इंटरसिपेशंस ऑफ इन्वायरमेंट, बिहेवियर एंड इमोशंस ओरिजिनेट फ्रॉम थॉट्स। कोई भी इमोशंस या कोई भी बिहेवियर थॉट से ओरिजिनेट होता है। अगर थॉट पॉजिटिव है तो बिहेवियरल पॉजिटिव होगा, अगर थॉट नेगेटिव है तो बिहेवियर नेगेटिव होगा। विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव परसेप्शंस बेस्ड ऑन द पास्ट। और ये सारे थॉट्स उसके पास्ट या फ्यूचर्स पे डिपेंड करते हैं। अगर पास्ट में कॉन्ट, नेगेटिव परसेप्शंस, एंजाइटी एंड लाइफ थ्रेटनिंग फीलिंग्स manifest by nervousness, fear, to make inactiveness, withdrawal and isolation from the group। Negative perceptions, anxiety and life threatening feelings manifested by nervousness। ये सारे नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव परसेप्शंस, एनएग्जाइटी, नर्वस, फियर, इन सब के वजह से आता है। विड्रॉल एंड आइसोलेशन फ्रॉम द ग्रुप, ऐसे ग्रुप से या तो हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए, या तो फिर ऐसे ग्रुप से या ऐसे लोगों से हमें आइसोलेशन कंप्लीट अलग कर लेना चाहिए। एज वेल एज द जनरल लैक ऑफ मोटिवेशन, कांट मोटिवेशन, पॉजिटिव परसेप्शंस, क्रिएटिविटी। अगर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव परसेप्शंस है तो वर्सटैलिटी इन एक्शंस एंड द जनरल सेल्फ मोटिवेशन। हमारे पास अगर पॉजिटिव परसेप्शंस है तो काम करने का ढंग ही हमारा अलग होता है, हमारा वर्सटाइल नेचर अलग होता है, एक्शंस अलग होते हैं, एंड द जनरल सेल्फ मोटिवेशन, एंड हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। इन एजुकेशन, प्ले, पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग एक्ट्स ऑफ ग्रेजुअसनेस, सोशलाइजिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। हमें
सोशलाइज होने की जरूरत है, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल. Humans are the social animal and we need to socialize, we need to connect with people. Development of effective individuals. Using the school throughout the counselor assist to improve and modify their personal effectiveness by helping them analyze and change their thought patterns. हमें इंप्रूव करना है, थाउट को चेंज करना है, पर्सनल इफेक्टिवनेस बाय हेल्पिंग देम, यानी कि लोगों को हेल्प करके थ्रू आउट द इनएक्टिव काउंसलिंग सेशंस. रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस स्कूल ऑफ दिस थ्रू. रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ये सारे थेरेपी जो है हमें स्कूल से ही मिलते हैं, क्योंकि when a person or students come to school, there are a many persons whom he can or she can interact with each other. The behavioral school of thought, based on the work of a group of behavioral psychologists, entered in the nature of human learning, observation of human behavior, and the way in which behavior is perpetuated throughout the life by the process of reinforcement and punishment. Human beings are born without any information and coordination, referred to as tabula rasa, which means कि human beings without information, without condition का जन्म लेता है. अगर human beings after born, all the habits and characters is gained in human beings after birth, so we need to take counseling time to time. The behavioral school of thought, individual interactions with the environment for learning, learning for their interactions with the environment, which means individuals का इंटरेक्शन होना चाहिए इन्वायरमेंट से, बिकॉज विदाउट इन्वायरमेंट वी कांट इंटरेक्ट विद एनीथिंग. Learning from their interaction with the environment. The role of guidance and counseling to enable the identify the approach learning opportunities that are lead to desired results and avoid undesirable stimulus or stimuli. हमें कुछ ऐसी चीजें करने की जरूरत है जिसे करने का हमें इच्छा हो. Psychological approaches to guidance and counseling. Guidance and counseling is based on psychological theory formulated through the research and scientific inquiry. Theories help in the understanding of human behavior with regard to causes and effective way of its modification. गाइडेंस और काउंसलिंग साइकोलॉजिकल थ्योरी पे डिपेंड करता है, जो कि साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिफिक इंक्वायरी भी हो चुका है. थ्योरीज हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग टू ह्यूमन बिहेवियर, और ये सारे थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, ह्यूमन बिहेवियर को समझने में हेल्प करते हैं विद रिगार्ड टू काउजेज एंड इफेक्टिव वे ऑफ इट्स मॉडिफिकेशन, जिसे हम टाइम टू टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं. द साइकोड्रामेटिक अप्रोच, work of Sigmund Freud, theory, psychoanalysis, unconscious motivation, psychosexual stages of development, innate sexual and aggressive drive, links between childhood and parents' behavior, and the nature of defense mechanism and their use. Unconscious motivation, psychological stage of development, innate sexual and aggressive drive,
ये सारी चीजें हमें अनकंडीशनली अनकॉन्शियस करती है. Nature of defense mechanism and their use. People are affected by unconscious motives and drives. Human beings relate to their environments. Human beings को अपने environment से relate करने की जरूरत है ताकि हमें consciousness सीखा जा सके. And plants or nature also have a conscious, which was experimented by Hagedorn in 1992. Three level of consciousness which influence the behavioral: pre-consciousness level, subconscious level. The subconscious level, Kuhn and Meter, 2007-2005. The psychoanalytical theory. The psychoanalytic theory. The psychoanalysis enables to uncover the represented psych forces, psychological techniques of free association, dream analysis, and hypnosis, administration and interpretation of projective techniques, thematic appropriation, test and hypnosis, mediating irrational facts and phobia. Learners' earlier experiences are exposed, understood, resolved using the psychoanalytic processes of behavior modification. Rational emotive behavior therapy, propounded by Ilse in 1979. Combination of the cognitive and behavioral approaches to counseling. Stoic philosophers Rao in 1992. People are disturbed not by things, events, or other people, but by the perceptions they take of things, event, or other people. लोग इसलिए डिस्टर्ब नहीं होते ताकि उन्हें बहुत ज्यादा काम या बहुत उनके लाइफ में कोई इवेंट्स या ऐसा कुछ जो वो करना चाहते हैं और कर नहीं पाए, बस वो डिस्टर्ब रहते हैं ड्यू टू देयर परसेप्शंस, ड्यू टू देयर नेगेटिव अप्रोचेस. Kant, counselor to help the client to emote or self-expression of all that is counseling psychic pain. Help in relationally lessen a person's anxiety through the skilled help. Counselor capability in the use of cathartic intervention, self-disclosures, interviewing, and other listening skills are emphasized. Some other model: electric model of counseling, pictorial model of counseling, traditional African guidelines and counseling approaches. Psychological approaches to guidance and counseling. Guidance and counseling is based on psychological theory formulated through the research and scientific inquiry. Theories help to understanding of human behavior with regard to causes and effective ways of its modification. Work of Sigmund Freud, 1856 to 1939. Theory of psychoanalysis. Unconscious motivation, psychosexual stage of development, innate sexual and aggressive drive, link between childhood and parents' behavior, and the nature of defense mechanism and their use. Human beings relate to their environment through
वेरियस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बींग्स अपने इन्वायरमेंट से अलग अलग लेवल का कॉन्शियसनेस से रिलेट कर सकता है। प्री कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस लेवल। प्री कॉन्शियस लेवल विच मीन्स कॉन्शियसनेस के पहले, कुछ भी सोचने से पहले, वी नो दैट सबकॉन्शियस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्री कॉन्शियस। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो या हमारी लाइफ में कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करना चाहें और वो सॉल्व ना हो रहा हो, तो उसको काफी लंबे टाइम तक सोचने के बजाय अगर हम 10 मिनट थोड़ा सा ट्रेवल कर लिए, थोड़ा सा वार्म अप कर लिए या थोड़ा सा मूवमेंट कर लिए, बस उन बातों को छोड़कर, उन बातों को सोचना छोड़कर, तो आफ्टर 10 और 15 मिनट्स यू गेट द आंसर, बिकॉज you are not thinking about the question, but your subconscious mind is trying to solve the problems. That's why pre-conscious is related to subconscious. The unconsciousness level of Kohn and Meter 2007 and Patry 2005. Psychoanalysis enables to uncover the represent psychic force. Psychoanalytical techniques of free association, dream analysis, and hypnosis. We know that hypnosis is to contact with yourself to another person. Administration and interpretation of projective techniques. Thematic appropriation tests and hypnosis, mediating irrational fears and phobia. There are many phobia which means डर। बहुत से लोगों को किसी ना किसी चीज से डर होता है, एंड वी नीड टू काउंसलिंग देम। हमें उस डर को हटाने की जरूरत है, इसके लिए हमें काउंसलिंग की जरूरत है। लर्नर्स अर्लियर एक्सपीरियंस आर एक्सपोज्ड। अगर हमें किसी चीज की डर होती है, किसी चीज का फोबिया होता है, तो हमें वो इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग में ही हमें समझ में आ जाता है, एंड वी नीड टू चेंज। हमें उसे बदलने की जरूरत होती है, हमें उसे समझने की जरूरत होती है और उसे रिजॉल्व करने की जरूरत होती है यूजिंग द साइकोथेरेनेलिटिक प्रोड्यूसर्स एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन, और अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करके इन सारे फोबियाज को चेंज करने की जरूरत है। Rational emotive behavior therapy, propounded by ILS, combination of the cognitive and behavioral approaches to counseling. Stoic philosophers, people are disturbed not by things, events, or other people, but their perceptions they take of things, event, or other people. Kant, counselor to help the client to emote or self expressions of all that is counseling psychiatric pain। यानी कि काउंसलर को साइकेट्रिक के पेन को बाय साइकोलॉजिकली हमें समझने की जरूरत है। हेल्प्स टू रियलाइजबिलिटी लेसन्स अ पर्सन्स एंजाइटी थ्रू द स्किल्ड हेल्प। हमें अपने स्किल्ड या फिर काउंसलर को अपने स्किल्स के दम पे उससे हेल्प करने की जरूरत है। काउंसलर कैपेबिलिटी इन यूज ऑफ कैथेरिक इंटरवेंशन, सेल्फ डिस्कवरेंस, interviewing, and other listening skills are emphasized. Some other models: elastic model of counseling, pictorial model of counseling, traditional African guidance and counseling approaches, and the conclusion of the Paracetionians
required to be grounded in clear understanding of the various guidance and counseling theories and approaches. Counselors and para must be understand the tools of understanding human behavior. Effective counseling requires sound understanding of theories and approaches that drive the practice. Thank you.